ठीक है। our topic will be position of a point with respect to circle. अगर मैं एक सर्कल या पॉइंट की गल करा तो देयर कुड बी थ्री कंडीशंस, आइदर द पॉइंट कुड बी इनसाइड द सर्कल और इट कुड बी ऑन द सर्कल और इट कुड बी आउटसाइड द सर्कल। सिंपल होएगा, ठीक है। देयर इज अ सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0 एंड देयर इज पॉइंट x1 y1। ठीक है, तो x1 y1 ਦੀ ਆਪਾਂ अगर रिलेटिव पोजीशन फाइंड आउट करनी होवे विद रिस्पेक्ट टू दिस सर्कल, जिवें ਆਪਾਂ स्ट्रेट लाइनस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ whether the point lies on same side of line or they lies on opposite side of line, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਾਵਰ ਆਫ ਪੁਆਇੰਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। अगर पावर ऑफ पॉइंट पॉजिटिव आ जाती है दोनों की ਤਾਂ भी वो सेम साइड, नैगेटिव आ जाती है दोनों की ਤਾਂ भी सेम साइड, बट अगर एक नैगेटिव एक पॉजिटिव आती है दे लाई ऑन अपोजिट साइड। ठीक है, सर्कल के केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ power of point if it is positive point lies outside, power of point if it is equals to 0 point lies on the circle, if power of point is negative point lies inside the circle। simple, ठीक है। तो s will be equals to power of point and that will be equals to x1 square plus y1 square plus 2gx1 plus 2fy1 plus c। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ एस की होएगा पावर ऑफ पॉइंट का मतलब कि पॉइंट नू सर्कल दे विच पुट कर दो, पॉइंट नू सर्कल दे विच पुट कर दो, एक्स की जगह पे की लिख दो x1, y की जगह पे की लिख दो y1। नाउ इफ s is greater than 0 or it could be equals to 0 or it could be less than 0, if it is greater than 0 point lies outside the circle, if it is equals to 0 point lies on the circle, and if it is less than 0 point lies inside the, ठीक है, सिंपल चीज है। if it is greater than 0 point lies outside, if it is equals to 0 point lies on, and if it is less than 0 point lies inside the circle। ठीक है, एग्जांपल एक अपन ले लेते हैं, मान लो कि x स्क्वायर plus y square plus 3x plus 4y minus 16 equals to 0 is a circle and there is a point 1 comma 1। ਆਪਾਂ चेक करना कि whether 1 comma 1 lies on inside or outside the circle। तो ਆਪਾਂ डायरेक्टली की पुट करना x की जगह पे 1, y की जगह पे भी 1, 1 plus 1 plus 3 plus 4 minus 16 which will be negative, negative means point lies inside the सर्कल। ठीक है, सिंपल, दिस इज पावर ऑफ पॉइंट। पावर ऑफ पॉइंट ऐसे याद कर लेना कि मैं काफ़ी सारे अगे टेंजेंट के फॉर्मूले, पेयर ऑफ टेंजेंट्स के फॉर्मूले एस के बिहाफ से बनाऊंगा। एस इज पावर ऑफ पॉइंट एंड इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c। ठीक है, इफ इट इज पॉजिटिव आउटसाइड, 0 ऑन, इफ इट इज नेगेटिव तो पॉइंट लाइज इनसाइड। ठीक है, कर लो नोट, ये एक दो क्वेश्चन करेंगे फिर। Discuss the position of a point 1, 2 and 6, 0 with respect to the circle x square plus y square minus 4x plus 2y minus 11 equals to 0। ठीक है, सिंपल। s for 1, 2 will be equals to 1 plus 4 minus 4 plus 4 minus 11, तो ये दोनों कैंसिल।
4 plus 1 is 5, 5 minus 11 is minus 6. Negative to means that lies inside the circle. Power of point for 6 comma 0, that will be equals to 36 minus 24 minus 11. So that will also be negative, sorry, positive 1. ठीक है, positive to means that lies outside the circle. ठीक है, सिंपल होगा, बट इन्ना सौखा क्वेश्चन कदे आएगा नहीं पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ. ठीक है, तो सिंपल है पावर ऑफ पॉइंट फाइंड आउट करना. क्वेश्चन किवें दे आउणगे ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ एग्जांपल लिखते हैं. अ सर्कल does not touch or intersect coordinate axis. ठीक है, कोई सर्कल है दैट इज नाइदर टचिंग नॉर इंटरसेक्टिंग द बोथ कोऑर्डिनेट एक्सिस, ना ही एक्स एक्सिस ਨੂੰ टच कर रहा, ना ही वाई ਨੂੰ कर रहा, and is given by x square plus y square minus 6x minus 10y plus lambda equals to 0. If 1 comma 4 lies inside the circle, if 1 comma 4 lies inside the circle, find lambda. ठीक है, कंडीशन देखो की है, a circle does not touch or intersect the coordinate axis, ना ही वो टच कर रहा coordinate axis ਨੂੰ, ना ही वो intersect कर रहा, and वो circle ਦੀ ਇੱਕ equation given है ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ circle ਦੀ, that is x square plus y square minus 6x minus 10y plus lambda equals to 0. Now if point 1 comma 4 lies inside the circle, find the value of lambda. सब तो पहला तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता कि if a point lies inside the circle, power of point should be negative. Power of point should be negative means 1 comma 4 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ put कर दो, that thing should be less than 0. यही होएगा ना. ਆਪਾਂ सब तो पहला point ਤਾਂ ਇਹ बना ਦਿੰਨੇ ਆ कि s of 1 comma 4 which is equals to 1 plus 16 minus 6 minus 40 plus lambda should be less than 0, because point lies inside, so that must be less than 0. कितना आ जाएगा, 10 11 minus 40 29 minus 29 plus lambda is less than 0, तो lambda is less than 29. एक तो आंसर अपने को ये आ गया कि lambda is less than 29. ठीक है, बट ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਲ ਡਸ ਨਾਟ ਟੱਚ ਔਰ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਐਕਸਿਸ. ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਟਰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ. ਵਟ ਵਿਲ ਬੀ ਇਟਸ ਸੈਂਟਰ 3,5. what will be its center 3,5 means if its center is 3,5 and circle is neither touching nor intersecting the coordinate axis, तो automatically it should be like this. सिर्फ इत्थे होएगा, ना ही ये टच कर रहा, ना ही ये की कर रहा, इंटरसेक्ट कर रहा. नाउ दिस विल बी r and this will be r. ठीक है, दिस पॉइंट ए वाला इथों तक डिस्टेंस की होएगा, दैट विल बी रेडियस r होएगा. एंड व्हाट इज r in this case, that is 9 plus 25 minus lambda under the root, which is 34 minus lambda under the root. ਹੁਣ अगर ये सर्कल ना ही तो किसी कोऑर्डिनेट एक्सिस ਨੂੰ टच करे, ना ही इंटरसेक्ट करे, तो दिस r should be, and what is this distance, this is 3 and this distance is 5. लग रहा है ना पता अपन. so this r should be less than, ਜਿਹੜਾ r है that should be less than 5 and this r should be less than 3. मतलब r should be less than 5 as well as less than 3. अगर r अपन less than 3 कर दिए तो automatically that will be less than 5. तो अपन की कंडीशन लगावांगे that r should be less than 3 means 34 minus lambda under the root should be less than 3. तो 34 minus lambda should be less than 9. Lambda should be greater than 34 minus 9 means 25. Now this says lambda is greater than 25. This says lambda is less than 29, so means lambda belongs to 25 to 29. This will be your. ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस पावर ऑफ पॉइंट के बेस पे मिल जाते हैं. लिख लो.
लिखो लिखो जल्दी। ये कंप्लीट करके नेक्स्ट टॉपिक विल बी intercepts made by circle on coordinate axis. Intercepts made by circle on coordinate axis. नोट करो जल्दी, फिर आप उत्थे चल रहे हैं। इथे लिख भी लियो दैट r must be less than 3, r must be less than 5, this implies r must be less, क्योंकि आप इंटरसेक्शन लेना तो मतलब किया कि r is less than 3। ठीक है, चलिए कि इंटरसेप्ट मेड बाय सर्कल ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। सुनो, लेट देयर बी अ सर्कल लाइक दिस, ठीक है, दैट इज इंटरसेक्टिंग बोथ द एक्सिस, एक्स एक्सिस ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, y एक्सिस ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरसेप्ट? इंटरसेप्ट ਦਾ मतलब ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੜਿਆ ਸੀ कि अगर कोई लाइन बन रही है y इक्वल्स टू mx प्लस c, y एक्सिस ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪਾਰਟ ਕੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, दैट विल बी y इंटरसेप्ट। सेम ਇੱਥੇ ਹੈ, व्हाट विल बी x इंटरसेप्ट? जो डिस्टेंस x एक्सिस ਦੇ ਉੱਤੇ सर्कल कट कर रहा है, दैट विल बी कॉल्ड x इंटरसेप्ट। जो डिस्टेंस y एक्सिस ਦੇ ਉੱਤੇ कट कर रहा है, दैट विल बी कॉल्ड y इंटरसेप्ट। ठीक है, तो लेट दिस पॉइंट बी a, लेट दिस पॉइंट बी b, लेट दिस पॉइंट बी a डैश, लेट दिस पॉइंट बी b डैश। तो व्हाट विल बी x इंटरसेप्ट? x intercept will be equals to AB, and what will be y intercept? That will be equals to A dash B। ठीक है, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਥ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਾਊ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਲੈਂਥ ਆਫ ਇੰਟਰਸੈਪਟਸ ਮੇਡ ਬਾਈ ਸਰਕਲ ਔਨ x ਐਂਡ y ਐਕਸਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ A ਐਂਡ B, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਾਮਨ ਹੈ ਕਿ both are lying on x axis, and point lying on x axis means its y will be equals to 0। यही कंडीशन होती है, अगर कोई पॉइंट x axis के ऊपर लाई कर रहा है तो means its y is equals to 0। तो let the circle be x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equals to 0। In order to find a and b, what will be the condition? Condition will be for x intercept y is equals to 0, simply y should be equals to 0। तो a वाली टर्म ते a वाली टर्म दोनों 0 हो गई, अपने को की बचा x square plus 2gx plus c equals to 0। तो what will be g या what will be x? x will be minus g या माइनस b, यानी कि माइनस 2g प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4g स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी अपॉन कितना आ जाएगा 2, यही होएगा। ठीक है, अगर इन्होंने मैं सॉर्ट करके लिखा तो माइनस जी प्लस अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी अपॉन कुछ नहीं, मतलब यही आएगा माइनस जी माइनस अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी, यही तो आ जाएंगे।
तो ऑटोमेटिकली एक वैल्यू की दी होगी ए दी, दूसरी वैल्यू की दी होगी बी दी, एंड डिस्टेंस ए बी विल बी इक्वल्स टू डिफरेंस बिटवीन दीज टू रूट्स। यही आ गया ना, इन्हों चो एक वैल्यू ए दी आई है, एक वैल्यू बी दी आई है, इन्हों दोनों का डिफरेंस है, दैट विल बी आवर आंसर। तो दैट विल बी इक्वल्स टू ट्वाइस अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स इंटरसेप्ट ऑफ अ सर्कल। ठीक है, कि सर्कल एक्स एक्सिस से कितना पार्ट कट कर रहा है, दैट विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू ट्वाइस अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी। अगर फॉर्मूला भुल भी जाते हो तो ਤੁਹਾਨੂੰ प्रोसैस याद रहना चाहिए, दैट इन ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट एक्स इंटरसेप्ट सिंपली पुट y इक्वल्स टू 0, दो रूट्स आउणगे, दोनों का डिफरेंस होएगा, दैट विल बी द लेंथ ऑफ या दैट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स इंटरसेप्ट। ठीक है, सिमिलरली फॉर y इंटरसेप्ट ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, पुट x इक्वल्स टू 0, तो मीन्स y square plus 2fy plus c equals to 0. Similarly, there will be two values of y, y1, y2 will be there, and what will be the length of y intercept, that will be y2 minus y1. So after calculation, a dash b dash which is equals to y intercept by symmetry, that will be equals to twice under root of f square minus c. ठीक है, that is the value of y intercept. X intercept will be twice under root of g square minus c, and y intercept will be twice under root of f square minus c. ठीक है, now नोट करके एक दो पॉइंट्स, if x intercept is equals to 0, अगर x intercept 0 है, ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ मतलब है कि सर्कल x एक्सिस ਨੂੰ ਕੱਟ नहीं कर रहा, ਉਹਨੂੰ जस्ट ਕੀ कर रहा, टच कर रहा, means if x intercept is equals to 0, circle touches x axis। ठीक है, this implies g square minus c equals to 0, this implies g square is equals to c। तो मतलब if circle touches x axis, g square is always equals to c। ठीक है, similarly if y intercept is equals to 0, circle touches y axis, that this implies f square minus c equals to 0, this implies f square is equals to c। ठीक है, एंड थर्ड अगर दोनों ਨੂੰ टच कर रहा, if circle touches x and y axis both, this implies g square is equals to f square is equals to c। ठीक है, क्वेश्चंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ। तो g square equals to c means circle touches x axis, f square equals to c means circle touches y axis, g square equals to f square equals to c means circle is touching both the axes। ठीक है, लिख लो।
ठीक है, फॉर्मूले कई बार भुलन के भी चांसिस है, तुसी बस ये याद रखना कि फॉर एक्स इंटरसेप्ट वाई इज इक्वल्स टू 0, फॉर वाई इंटरसेप्ट एक्स इक्वल्स टू 0। इन्नी चीज़ याद रहेगी, समझ लो क्वेश्चन हो गया। Find equation of circle whose endpoints of diameter are 1, 3 and 4, 2. Hence find its x intercept and y intercept। ठीक है, मान लो एक क्वेश्चन आ जाए मेरे को, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल whose endpoints of diameter are 1, 3 and 4, 2, hence find its x intercept and y intercept। diametrical form ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਕੱਲ कि अगर endpoints of diameter are given, what we have to do to write the equation? x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 equals to 0। ठीक है, गजनी ना बन जाया करो, x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 equals to 0। तो किया जाएगा x minus 1 into x minus 4 plus y minus 3 into y minus 2 equals to 0। ठीक है, एंड वी हैव टू फाइंड इट्स एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट। तो सब तो पहला ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ देखो सुनो एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने के लिए या तो मैं जावां फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मैंने हार्डवर्क करना पऊगा, मैंने पहला दोनों इक्वेशनस ਨੂੰ ਕੀ करना पऊगा, सॉर्ट करना पएगा। मैं बनाऊंगा स्टैंडर्ड इक्वेशन, फिर ਉਹਦੇ 'ਚ 2g² माइनस c ट्वाइस f² माइनस c लगाऊंगा। अगर मैं कंसेप्ट बेस पे चलना है, इन ऑर्डर टू फाइंड एक्स इंटरसेप्ट व्हाट वी हैव टू डू इज पुट y इज इक्वल्स टू 0। एक्स इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने के लिए वाई इंटरसेप्ट की रखना पैना आपको 0। तो मतलब मैंने सिर्फ यही मल्टीप्लाई करने पैने, दूसरे नहीं मल्टीप्लाई करने पैने, वैसे ही मतलब जस्ट एन एक्सपेरिमेंट। तो क्या आ जाएगा x² माइनस 5x प्लस 4, दिस इज 0 प्लस कितना आ जाएगा 6 इक्वल्स टू 0। तो x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ रूट्स ਆਉਣਗੇ डिफरेंस ऑफ रूट्स विल बी द x इंटरसेप्ट। सिंपल यही होएगा। अगर वही चीज मैंने कह दें y इंटरसेप्ट के लिए, तो दिस थिंग विल बी इक्वल्स टू 0, दिस थिंग इक्वल्स टू 0। तो 4 प्लस y² माइनस 5y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो y² माइनस 5y प्लस 10 इक्वल्स टू 0। ਇਹਦੇ ਦੋ रूट्स होंगे, डिफरेंस ऑफ दीज टू रूट्स विल बी द लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट। अगर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जाना तो आपको पहले सॉर्ट करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा x² माइनस 5x प्लस 4 प्लस ये कितना आ जाएगा y² माइनस 5y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो दिस इज x² प्लस y² माइनस 5x माइनस 5y प्लस 10 इक्वल्स टू 0। तो g की वैल्यू कितनी आ गई अपने को 5 माइनस 5/2, f इज माइनस 5/2 एंड c इज इक्वल्स टू 10। सिंपली फॉर्मूलाज ਦੇ ਵਿੱਚ पुट करो। क्या नहीं, g तो माइनस 5/2 ही रहेगा, f माइनस अपन सिंपल की ਹੁੰਦਾ इक्वेशन की ਹੁੰਦੀ है x² प्लस y² प्लस 2gx, hence 2g is equals to minus 5, g is equals to minus 5/2। हाँ, सेंटर विल बी 5/2 5/2। ठीक है, सिंपल फॉर्मूले च वैल्यू पुट करांगे, आंसर आ जाएगा। ओके, दोनों तरीके जेड़ा भी तुहानू सूट करे दैट इज द बेस्ट। ठीक है, लिख लो क्वेश्चन, लिख लो, सॉल्व तुसी खुद कर लो, पूरा नहीं लिखना, पहला क्वेश्चन लिखना है। रूट्स ना बने तो क्वाड्रेटिक फार्मूला, उससे नहीं बनेंगे तो मतलब एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट कुछ है ही नहीं, मीन्स दैट इज नाइदर टचिंग एक्स इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस, नाइदर इट इज टचिंग वाई एक्सिस। अगर रियल रूट्स आ रहे हैं तो मीन्स देयर विल बी सम इंटरसेप्ट। अगर रियल एंड इक्वल रूट्स आ रहे हैं तो मीन्स डिफरेंस बिटवीन द रूट्स इज 0, मीन्स दैट इज जस्ट टचिंग द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एंड इफ देयर आर नो रियल रूट्स ऑफ एक्स एंड वाई quadratic, means that is neither touching nor intersecting the x axis and y axis। सिंपल। ठीक है,
ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ देखो इनू जो प्रोडक्ट किया ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 ही हो गया ना ये, ठीक है। ये कितना हो गया वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 बस इन्होंने इतना लिखता इनू इतने लिखता, ठीक है। चलो लिख लो, सिर्फ क्वेश्चन लिख लो, आंसर नहीं लिखना तुसी। ठीक है, मिनिमम एंड मैक्सिमम नियरेस्ट एंड फारदेस्ट पॉइंट का मैं कल तुहानू दस ही दिता सी, विच वन विल बी द नियरेस्ट पॉइंट एंड विच वन विल बी द फारदेस्ट पॉइंट। ठीक है, छोटे छोटे टॉपिक्स है, 2-3 हो जाएंगे आज अपने कवर। चलो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस ऑफ सर्कल, ठीक है। पहला आप ऑलरेडी पढ़ रखे हैं डिफरेंट फॉर्म्स, आप शुरू किया कि अगर मैंने रेडियस गिवन होएगा सेंटर या इस पॉइंट के विच दी पास कर रहा है कुछ इवें दियाँ, हुण उसे नूं ही आप थोड़ा जिहा कंपलैक्स से लैके चलते हैं कि सपोज मैंने इंटरसैप्ट गिवन हो, ठीक है। इंटरसैप्ट गिवन है, हाउ टू राइट डाउन इट्स इक्वेशन, मैनू ये गिवन है कि वैदर इट इज टचिंग और इंटरसैक्टिंग, ये सब चीज़ों यूज़ करके आप इक्वेशन ऑफ सर्कल किवें लिखते, ठीक है। वैसे तो थ्योरी है, मैं टाइप्स बनवा सकता तुहानू 10-11, बट आपको टाइप्स बनाने की लोड़ ही नहीं, आप 10-11 क्वेश्चन करते हैं तो ऑटोमैटिकली सब कुछ क्लीयर हो जाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 लिखो, जिवें नाल लिखो, आप इकट्ठे सॉल्व करांगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, find equation of circle that touches y-axis at distance of 4 units from origin, that touches y-axis at the distance of 4 units from origin and cuts intercept of intercept of 6 units on x-axis, ठीक है। मतलब इक्वेशन ही पूछी है उन्होंने, बट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का तरीका की हो गया उन्होंने बिल्कुल डिफरेंट हो गया, ठीक है। दे आर सेइंग फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल दैट टचेज y-axis at a distance of 4 units from origin and cuts intercept of 6 units on x-axis। ਹੁਣ अगर मैं इनू इस तरीके नाल चलूँगा कि मैं फॉर्मूले यूज़ करने की कोशिश करा तो क्वेश्चन कभी होएगा ही नहीं, आप कन्फ्यूज हो जाएंगे उत्थे। इनू करने का सब तो सौखा तरीका की है कि पहला डायग्राम बनाओ, डायग्राम तो देखो तुहानू 9th 10th वाली किहड़ियां प्रॉपर्टीज़ याद है, जिन्नियां प्रॉपर्टीज़ याद है सारियां अप्लाई कर दो, सिंपली अपना क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। देखो किवें होएगा, की कह रहे आपां नू वाई एक्सिस नू ये जस्ट की कर रहा टच कर रहा सर्कल, बट एक्स एक्सिस नू की कर रहा कट कर रहा, कुछ इदां दा सर्कल है, वाई एक्सिस नू जस्ट टच कर रहा, एक्स एक्सिस नू कट कर रहा, एंड वाई एक्सिस नू कित्थे टच कर रहा एट पॉइंट 0,4, ठीक है। दिस इज टचिंग एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस एट 0,4 एंड इट इज कटिंग एन इंटरसेप्ट ऑफ 6 यूनिट्स ऑन एक्स एक्सिस, यही है, ठीक है, सिंपल यही चल रहा है। नाउ लेट अस सपोज दिस पॉइंट इज द सेंटर ऑफ सर्कल, if this is the center of circle, y-axis will be its tangent, ठीक है, and we know that radius and tangent they are always perpendicular to each other, means if we draw line like this, it automatically it will be perpendicular, ठीक है, and we will drop a perpendicular from here as well, ठीक है। this distance is 4, तो automatically this distance is 4 means this distance will also be equals to 4, अगर ये 4 है तो ये भी कितना होएगा 4 होएगा। now सेकेंड पॉइंट, अगर मैं इस पॉइंट तो इत्थे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो दिस इज अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑन एनी कॉर्ड, तो दैट विल बाइसेक्ट द कॉर्ड,
means this is equals to 3 and this is equals to 3. Now if this is 3, this is 4, this thing is equals to r, so r will be equals to 5. 3 square plus 4 square and its under root, so that will be equals to 5. तो r आ गया मेरे कोले, नाल मैनू की चाहिदा सीगा सेंटर, सेंटर मैनू पता कि दैट विल बी y, अगर a 4 है तो a लेंथ भी कितनी है 4, मतलब ਇਹਦਾ y ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 4। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ x ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹਜੇ। x फाइंड आउट ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, x फाइंड आउट ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ what will be this distance, ठीक है, what will be this distance will also be, अगर a r है तो यही आर्क चल रही है इत्थे, this will also be equals to r। अगर a वाला डिस्टेंस r है तो ये भी तो r ही होएगा ना, एंड दिस विल बी दिस लेंथ r कितना फाइंड आउट किया आपने 5, तो दिस पॉइंट विल आल्सो बी इक्वल्स टू 5,4। तो 5,4 की है सेंटर, रेडियस कितना 5, रिक्वायर्ड इक्वेशन विल बी x minus 5 whole square plus y minus 4 whole square is equals to 25। कुछ भी नहीं किया आप 2 मिनट ਦੇ ਵਿੱਚ क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूलेस के चक्कर च आप नहीं पावांगे ज़्यादा, आप सिंपल नॉलेज के नाल लॉजिकली क्वेश्चन सॉल्व करके देखा, ठीक है। बना लो, इन्हें सॉल्व कर लो। ठीक है, आई समझ। 0,4 4 4, अगर ये 4 है तो ये 3 3 प्लस 4 ये कितना हो गया 5, अगर ये वाला 5 है तो दिस डिस्टेंस इज आल्सो इक्वल्स टू 5, मींस दिस पॉइंट इज 5,4। तो सेंटर 5,4, रेडियस 5, इक्वेशन ऑफ सर्कल विल बी x minus x1 whole square plus y minus y1 whole square equals to r। बस find equation of circle in first quadrant touching both axes and whose center lies on x minus 2y equals to 3। ठीक है, मान लो ये क्वेश्चन आ जाए मेरे को, देख लो, आप फिर खत्म करके तुहानू टाइम दूंगा मैं नोट करन दा, ठीक है, नोट कर लो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट टचिंग बोथ एक्सेस एंड हुज सेंटर लाइज ऑन द लाइन x minus 2y equals to 3। ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एक चीज़ नोट करके लिख लो। Let us suppose there is a circle which is touching both the axes in first quadrant, तो मतलब वो सर्कल ਆਪਾਂ ਨੂੰ कुछ इदां ਦਾ दिखेगा, ठीक है। Let its center be over here, अगर ये सेंटर है तो this will be perpendicular, क्योंकि both x and y axis they are tangent to it, तो radius and tangent they are perpendicular to each other and this will also be equals to, ठीक है। तो अगर a r है या यदि लेंथ a है तो this length will also be equals to a, तो its center will always be of the form a comma a। If a circle touches both the axes, its center will also always be of the form a comma a। Simple, that will be a comma a। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, find the equation of a circle in first quadrant touching both axes, तो मतलब ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता लग गया कि its center will be of the form a comma a and that center lies on the line x minus 2y equals to 3। तो a minus 2a is equals to 3 minus a equals to 3, तो a is equals to minus 3। a
-2a इज इक्वल्स टू 3। तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट आ गया ना। सिंपली छड़ दो इनू। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, छड़ दो फर्स्ट क्वाड्रेंट कर देने। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल टचिंग बोथ एक्सिस एंड हुज सेंटर लाइज ऑन द लाइन। तो a इज इक्वल्स टू कितना आ गया -3, तो सेंटर विल बी -3 -3, ठीक है, दैट विल बी -3 -3। सेंटर पता चल चुका एंड रेडियस विल बी इक्वल्स टू बन गई गल। हुण इत्थे थोड़ी जी कहानी छोटी जी कंपलैक्सिटी इहदे विच की है कि इहो जिहा एक सर्कल नहीं होएगा, इहो ਜਿਹੇ 4 सर्कल होणगे। किहड़े किहड़े? टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस वाला ए सर्कल भी हो सकता, ए वाला सर्कल भी हो सकता, ए वाला सर्कल भी हो सकता एंड ए वाला सर्कल। तो ये तो जस्ट रैंडम क्वेश्चन सीगा, एक तो आपां नूं देखना पेगा कि किहड़े कोऑर्डिनेट की क्वेश्चन दे विच गल कर रहे हैं, ठीक है, उन्होंने ध्यान च रख के चलना पऊगा। ये भी बना लियो कि देयर कुड बी 4 केसेस। हुण इहदा सेंटर कितना होएगा ए, इहदा हाँ हाँ ए थर्ड क्वाड्रेंट च -a, दिस इज a, माइनस, ठीक है। तो मतलब ये 4 केसेस बना सकता क्वेश्चन ਆਪਾਂ ਨੂੰ, मतलब 4 ऑप्शंस दे के मल्टीपल करैक्टर ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਰੋਂ आंसर्स आ सकते हैं, तो चारों के चारों की होंगे वो सही हो, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है ਇਹਦੇ ਚੋਂ। अगला क्वेश्चन लिखो या 2 मिनट दो बस मैंने। क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल देखो क्वेश्चन देखो इनू ध्यान नाल सुनियो। अ सर्कल ऑफ रेडियस 2, सर्कल ऑफ r is equals to 2 lies in first quadrant, and touches both axes, find the equation of circle, with center at 6, 5 and touching given circle externally, ठीक है। ਹੁਣ दो सर्कल्स आ गए, ਆਪਾਂ ਨੂੰ गिवन है कि there is a circle of radius 2 and which is lying in the first quadrant and touching both the axes, ठीक है। किवें दा सर्कल होएगा वो इस तरीके का एक छोटा सर्कल इदा, ठीक है, whose radius is equals to 2 means this and this length they both are 2। then there is another circle 6, 5 will be over here, ठीक है, and that circle is touching this circle externally। internal touching की होंदी है, external touching की होंदी है वो भी दसांगे ਆਪਾਂ, बट क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ external ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। तो means it is like this, ठीक है। इदां ही सर्कल की कर रहे आपस ਦੇ ਵਿੱਚ टच कर रहे हैं। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ फाइंड आउट ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੈਂਟਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ अगर ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ, रेडियस पता लग जाए तो काम बन गया, ठीक है। नाउ if it is touching externally, so centers and their point of intersection they will be lying on a straight line, this will be 90 and this will be equals to 90। अगर दो सर्कल्स एक्सटर्नली टच कर रहे हैं एक दूसरे ਨੂੰ तो ऑटोमेटिकली देयर सेंटर लाइज ऑन द लाइन पासिंग थ्रू देयर पॉइंट ऑफ टचिंग, जिथे वो की कर रहे हैं एक दूसरे ਨੂੰ टच कर रहे हैं एंड वी नो दैट दिस थिंग इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। एक ही अपने को 2 है। नाउ अगर मैं इनू की करा इथों परपेंडिकुलर ड्रॉप करा ओवर हियर, ठीक है, तो व्हाट विल बी दिस लेंथ विल बी इक्वल्स टू 6 एंड व्हाट विल बी दिस लेंथ विल बी इक्वल्स टू 5। तो आपां की फाइंड आउट करना है द रेडियस, सो दिस पॉइंट इज 2, 2, ठीक है। 5 सिंपली डिस्टेंस फॉर्मूला ही ला देंगे। व्हाट विल बी दिस डिस्टेंस ए एंड बी, what will be distance AB, that will be 6 minus 2 whole square plus 5 minus 2 whole square under the
root, so that will be 16 plus 9 under the root, that will be equals to 5. तो ये पूरा distance कितना 5, ਇਹਦਾ radius कितना 2, तो means a dash which is radius of bigger circle, that will be 5 minus 2 equals to 3. ठीक है, तो ये कितना आ गया 3. रिक्वायर्ड इक्वेशन विल बी x minus 6 whole square plus y minus 5 whole square is equals to 3 this way. ठीक है, ਸਿੰਪਲ, ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੰਪਲ ਨੇ, ਬਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਆ. ਕੋਈ ਹਾਰਡ ਐਂਡ ਫਾਸਟ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਈਜ਼ੀਐਸਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ. ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਫੋਰਵਰਡ ਕਰਾਂਗੇ.